الوداع شاہ فیض اللہ بیگ جنیدی الوداع۔ دوستو یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں شاہ فیض اللہ بیگ جنیدی کے آخری سفر کا۔ شہریان بنگلور اور ریاست کرناٹک کے مختلف شہروں سے آئے لوگوں نے مل کر، مختلف شعبہ حیات کے لوگوں نے مل کر شاہ فیض اللہ بیگ جنیدی کو الوداع کیا۔ کل 14 دسمبر آپ کا وصال ہوا اور آج بروز پیر بتاریخ 15 دسمبر مسجد قادریہ میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ آج صبح تقریباً 10:30 بجے آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ریاست کی معروف روحانی شخصیت مولانا افضل الدین جنیدی عرف سراج بابا نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس موقع پر آپ کے مریدوں، چاہنے والوں، رشتہ داروں، دوست و احباب، مختلف سنی تنظیموں سے وابستہ افراد، مختلف ملی تنظیموں کے نمائندے، اساتذہ کرام، علماء کرام کثیر تعداد میں موجود رہے۔ قدس صاحب قبرستان گیٹ نمبر 1 میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اس موقع پر مولانا افضل الدین جنیدی المعروف سراج بابا و دیگر اہم شخصیات نے شاہ فیض اللہ بیگ جنیدی کی رحلت کو ملک و ملت کے لیے، سنیت کے لیے، اردو زبان کے لیے، اردو اسکولوں کے لیے اور اردو تعلیم کے لیے، سلسلہ جنیدیہ کے لیے ایک بڑا نقصان، ایک بڑا خسارہ قرار دیا اور آپ کی مغفرت کے لیے دعائیں فرمائیں۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ انتہائی افسوس اور المناک خبر ہے کہ فیض اللہ بیگ جنیدی صاحب نہیں رہے۔ ایک روحانی شخصیت، علمی شخصیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بارگاہ حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی قدیم مریدوں میں سے حضرت شاہ محمد فیض اللہ بیگ جنیدی صاحب اور میرے والد بزرگوار حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کا وصال باکمال کل ہوا، جو انتہائی افسوسناک خبر ہے شہریان بنگلور کے لیے اور خصوصاً سلسلہ جنیدیہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ مرحوم جو ہے الحمدللہ بہت سارے دینی، روحانی، علمی خدمات اپنی زندگی میں کیے۔ خاص طور پر اردو کے لیے ان کا خاص کام رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے روحانی سلسلہ، ہمارے سلسلے میں ہمارے والد محترم کے بہت زیادہ قریب، بہت زیادہ خدمت گزار رہے، ہمیشہ قریب رہتے تھے، اور والد صاحب بھی انہیں بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ اور یہاں پر بنگلور ٹینی روڈ وغیرہ کی ذمہ داری بھی انہیں، سلسلے کی ذمہ داری بھی انہیں دیے تھے، اور ذکر اذکار کی محفلیں کثرت سے، استقامت سے آخری دم تک انہوں نے چلائی، یہاں تک کہ کل فجر کی نماز کے بعد بھی انہوں نے ذکر کیا، آن لائن ذکر کر کے، اس کے بعد ان کا وصال ہوا۔ بہرحال مجموعی طور پر ایک اچھی شخصیت، روحانی شخصیت ہمارے درمیان نہیں رہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سلسلہ قادریہ جنیدیہ چشتیہ کے تمام اولیاء اللہ کے وسیلے سے ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے تمام کارہائے نمایاں کا بدلہ و نور ان کے قبر میں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رنج و غم کے ساتھ یہ بولنا چاہتا ہوں، میرے ہر دل عزیز، میرے پیر بھائی خلیفہ تاج الدین بابا جناب فیض اللہ بیگ جنیدی اس دنیا میں آج ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ ان کے خدمات بہت ہی اچھے رہے، کئی تنظیموں میں انہوں نے ذمہ داری اٹھائے، اور ہمارے ساتھ ہر مسئلے میں ہمارے ساتھ رہے، ہمارے دکھ میں، سکھ میں، خوشیوں میں بھی ساتھ رہے۔ جب بھی ہمارے تنظیموں کا مسئلہ آتا، سنیت کا مسئلہ آتا، ہمارے ساتھ ہر وقت، کبھی بھی بے وقت میں بھی اگر ہم فون کرے آ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ایک صفت بہت ہی اچھی رکھی تھی۔ بس میں ہر فرد سے میں گزارش کرتا ہوں ان کے
लिए मगफिरत की दुआ कीजिए, उनके दर्जात को बुलंद करें। बस हमें एक रंज ये हो कि हमारे एक अच्छे साथी हमें गंवा लिया है, लेकिन ये तो हक़ है, हर कोई जाना है, उस पर हम यकीन और ईमान रखते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब फैज़ुल्लाह बेग साहब जो है एक बेहतरीन इंसान रहे और अहले सुन्नत वल जमात के लिए काफ़ी जद्दोजहद करते, हर वक्त आगे आगे रहते थे और कोई भी चीज़ के लिए नौजवानों को जो है सो साथ लेकर जो है आगे बढ़ने के लिए कहते थे। इनकी एक सबसे बड़ी खूबी ये थी कि बड़े नरम तबीयत के इंसान रहे और शफ़क़त के साथ हर एक के साथ पेश आते थे, चाहे मुस्लिम्स हो या नॉन मुस्लिम्स हो, हर एक के साथ बड़े शफ़क़त के साथ पेश आते थे। ये उनकी जो है मोहब्बत जो है सो लोगों को बहुत पसंद आती थी, तो लोग उनके साथ जुड़ते थे और जब भी कुछ भी एक प्रोग्राम आता तो उन्होंने आके जुड़ जाते थे। जब भी मिनहाजुल कुरान के जो शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिल क़ादरी के जो लिटरेचर है, इसके पीछे जो है, चूँकि आप जो है सो स्कूल के प्रिंसिपल रहे, कई साल खिदमत अंजाम दिए गवर्नमेंट स्कूल्स में और कई टीचर्स जो है मुतासिर हुए आपसे, कई प्रोग्राम से मुझे लाए थे आप, मैं उस प्रोग्राम्स में भी शिरकत किया था, काफ़ी अच्छे तासुरात मिलते थे उनके। मिनहाजुल कुरान से वाबस्तगी भी थी, बहुत प्रोग्रामों में, आपके प्रोग्रामों में हिस्सा लेते थे, मिनहाजुल कुरान के प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। बिल्कुल लेते थे और एक मरतबा आप जो है सो नायब सदर भी रहे इस कमेटी के और माशाल्लाह जो है शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिल क़ादरी साहब को बहुत क़रीबी तरीक़े से आप जानते थे। आपके पीर मुर्शद ताज बाबा भी जो है जो शेखुल इस्लाम को जो है बहुत चाहते थे, आखिर वक्त तक भी शेखुल इस्लाम के आप भी जो है सो खिताब, आपका जो इंतकाल होने से पहले लास्ट खिताब जो है शेखुल इस्लाम का सुनते हुए आपका इंतकाल हुआ। बस अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, ये हम दुआ अल्हम्दुलिल्लाह ये सब ने जो भी कहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। बहुत ही निहायत अफसोस और गम की बात है कि जनाब फैज़ुल्लाह बेग साहब जुनैदी बहुत अच्छे अखलाक़मंद, दीन की खिदमत और मिलनसार थे, हर आदमी उनको चाहते थे। उन्होंने दीन के बहुत सारे खिदमत अंजाम दिए हैं। आज उनका इंतकाल हुआ, जनाजा हुआ, हम लोग सब दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब अता फरमाए। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह फैज़ुल्लाह बेग जुनैदी साहब एक मुतहरिक व फ़ियाल किरदार के हामिल बेहतरीन आदमी थे, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दीन व सुन्नियत की बेहतरीन खिदमत अंजाम दी है और आप खलीफा भी थे हुज़ूर ताजुद्दीन जुनैदी साहब क़िबला की। रूहानी एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया करते थे। इस मुनासबत से देखा जाए तो अहलियाने बेंगलोर पर अल्हम्दुलिल्लाह आपके बहुत सारे एहसानात हैं, इसलिए हमें चाहिए कि उनके दर्जात की बुलंदी के लिए हम सब मिलकर दुआ करें। उसी मुनासबत से हम आए हैं उनकी जनाजे में शिरकत के लिए। दुआ है रब की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बेपनाह बुलंद फरमाए और उनके मुरीदीन को अल्लाह ताला सब्र व जमील अता फरमाए और उनके जो रूहानी कनेक्शन है उनके ज़रिया अल्लाह ताला उनको दीन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फैज़ुल्लाह जुनैदी साहब की शख्सियत बड़ी शख्सियत थी, बहुत जद्दोजहद करने वाली शख्सियत थी। बिलखुसूस उर्दू स्कूल के मसाइल, उर्दू स्कूल के बिल्डिंग, उर्दू स्कूल के फर्नीचर्स, उर्दू स्कूल के लैबोरेटरी, उर्दू स्कूल असातिज़ा के बहुत सारे मसाइल हुकूमत के सामने पेश करने में उनका एक शानदार कारनामा है। इनका ताल्लुक़ कोलार ज़िले के कैंडूर से है। ज़्यादा वक्त इनका कोलार में और बेंगलुरु में गुज़रा। हमेशा मिलत के मसाइल लेकर, उर्दू ज़बान के मसाइल लेकर हुकूमत से टकराते थे और हुकूमत को बताते थे कि ये मसाइल हैं करके। हाल ही में उन्होंने गुज़िश्ता 10 साल पेशतर एक मस्जिद बनवाई है, जो मस्जिद अवैस करनी जो काड़गुनहल्ली में है, सुन्नी मस्जिद है और वहाँ के भी पूरे सरबराह हैं। एक रूहानी और सूफ़ीज़म में मुलविस इंसान थे और पीर व मुर्शद का सिलसिला भी इनका भी जारी था।
एक अच्छे इंसान थे। अब अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उन्हें जन्नत अल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन। तो बहुत अफसोस की बात है फैजुल्लाह बेग साहब नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बहुत दुख का दिन है कि मेरे उस्ताद जनाब मोहम्मद फैजुल्लाह बेग जुनेदी साहब एक बहुत अच्छी शख्सियत थे। जो मैं हादीगिरा विलेज चिंतामणी तालुक चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट से रहता हूँ, वहाँ पर हमारा जो एजुकेशन था 3rd स्टैंडर्ड से 6 तक मैं उनके साथ पढ़ा हूँ उनके पास। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला से दर्जा आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह इनके खबर को नूर मनोर अता फरमाए। अल्लाह इनकी जो ये थी सबको अल्लाह अता फरमाए। कैसी थी पढ़ाई वगैरह? माशाअल्लाह बहुत अच्छी थी। वो ज़माने से भी उनका बहुत अच्छा काम था। उनका एक कारनामा भी था, गांव के अंदर ईदगाह था, वहाँ पर 4 झाड़ पौधे लगाए थे, वो बहुत बड़े पौधे हुए थे। आज हमें वो याद रखो ही। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत फैजुल्लाह जुनेदी साहब हाल में बेंगलुरु में उन्होंने हमारे पीर व मुर्शिद हज़रत ताजुद्दीन बाबा की जो है साथ रहकर खिलाफत लेकर यहाँ इतने सारे उन्होंने कारमाना किए। यहीं मुंडेडी पाले में और कावल बैल शरण में डीजे हल्ली में पूरे उनके मुरीदा आज 10 बजे की इसमें जमात जुम्मा की जमात जैसे हो को आज है। उनके अल्लाह ताला उनको जन्नत तौफीक रफ़ीक अता फरमाए हैं। उनके मुरीदा इतने ही मुरीदा आज हम लोग को यहाँ बहुत मुश्किल है, फिर भी हम लोग ज़ियारत करने उनके वास्ते बहुत जने आए थे, लेकिन ज़ियारत मिली नहीं, देरी से हो गई। फिर भी उनको अल्लाह ताला उनको जन्नत तौफीक रफ़ीक अता फरमा। और मुरीदा इतने आए उनको, और फिर और मुरीदा होने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन अभी तलक वक़्त निकल गया है। आज उन्हें अल्लाह ताला के क़ब्रिस्तान में जाके इंशाअल्लाह उनको अल्लाह उनको जन्नत तौफीक रफ़ीक अता फरमाए है। उनको अल्लाह ताला मग़फ़िरत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत फैजुल्लाह बेग बहुत अच्छे थे, स्कूल में पढ़ाते थे और यहाँ में आके मकाम बना लिया, कोलार से यहाँ तक आए। और उनका इतना मकाम है कि अच्छी तरह से सुन्नी जमात के लिए बहुत करते थे। मुर्ग मोहल्ले में अभी आको उन्होंने बयान देते थे, हर अमास में आते थे, अच्छी तरह उनके बयान चलती थी। और उर्दू के अच्छा अफसर थे। और उनके का एक हादसा हो गया और हम बहुत परेशान हैं उनकी तरफ से। क्या करना, अल्लाह जज़ाकल्लाह फरमाए, अल्लाह जज़ाकल्लाह, आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। फरमाया जाता है कि ज़िंदगी मैयत है, मरने के बाद ज़िंदगी मिलती है। अहम जो अकाबरीन जो लोग हैं जो दुनिया से रुखसत होते हैं, यकीनन वो रुखसत नहीं होते, हमारे बीच रहते हैं। उनकी ज़िंदगी मरने के बाद उनकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। ऐसे ही फैजुल्लाह बेग जुनेदी साहब यकीनन जो ऐसा काम कर रहे थे, अहले सुन्नत के सरगर्म एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे जिन्होंने अहले सुन्नत का बहुत ज़बरदस्त काम किया है। इल्मी माशरे में भी बहुत अच्छा काम किया है, खानखाई निज़ाम में भी बहुत अच्छा काम किया है, स्कूल्स वगैरह पर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, स्टूडेंट्स पे भी काम किया है। और बाद सलाहियत तालीम दीन भी थे और बहुत नरम मिजाज के थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम तंजीमों की जानिब से हम जो है दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। सलीम पाशा कुरैशी साहब, 2 अल्फाज। अस्सलाम वालेकुम। फैजुल्लाह बेग जुनेदी साहब जो है एक सुन्नियत के अहम शख्स थे, जिन्होंने सुन्नियत के लिए काफ़ी सारा काम करके हैं। जैसे कि मिलाद में हो या किसी मिलाद का प्रोग्राम, हर प्रोग्राम में शामिल रहते थे। तो जो है हम लोग इंशाअल्लाह दुआ करें कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मिलाद के जलसे और जुलूसों में अदब और एहतराम के ताल्लुक से आपकी अपील जो है पूरे कर्नाटक में गूंजती थी। मिलाद के ताल्लुक से जो है हमारी एक अपील रही कि मिलाद एक अमन का जो है पैगाम है। तमाम से गुजारिश थी कि अमन से इस जुलूस में शिरकत फरमाएं और अदब से शिरकत फरमाएं। तो जो है लोग भी जो है उसको अमल करके जो है शिरकत फरमा रहे थे। और अक्सर हमारे मिलाद के प्रोग्रामों में जो है जो निज़ामत का काम है वो निज़ामत जो है हमारे फैजुल्लाह बेग साहब ही करते थे। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने भी मिलादा होते थे, हर जो जज्बे के काम से, नौजवाना के काम से, हर एक को साथ दे लग गए उन्होंने। हर तमाम मुस्तक़ाफ़िफ को सुन्नत के बारे में, तमाम मुस्तक़ाफ़िफ को सुन्नत के बारे में हर ख़ाइम बात कर लग गए। ये खिलाफ किसी के ये नहीं थे, ये कर लगो
में चल पड़ा है। फैज उल्लाह बेग साहब कई खूबियों के मालिक थे और एक अहम खुसूसियत उनमें जो है इत्तेहाद का उनसर था। हाँ, यकीनन जामिया हज़रत बिलाल जो मरकज़ अहले सुन्नत रहा है, उस मरकज़ में जो है फैज़ुल्लाह बेग जुनैदी साहब का बहुत बड़ा रोल रहा, बहुत सारी खिदमात रही। इसी तरह से अलहाज नवाब जान कुरैशी साहब, कई मरहूम जो हमारे बीच से रुखसत हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब निसार अहमद रज़वी साहब, मुख्तार साहब, इन तमाम का बहुत बड़ा रोल रहा। इन्होंने बहुत अच्छी खिदमत की है जामिया हज़रत बिलाल मरकज़ अहले सुन्नत में। और जहाँ तक फैज़ुल्लाह बेग जुनैदी साहब के अखलाक की बात है, किरदार की बात है, वो तमाम सुन्नियों में इत्तिहाद का काम करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तंजीमों को जोड़कर काम करते थे। खानकाही निज़ाम उनके अंदर एक कूट कूट कर भरा हुआ था, एक नरमी मिजाज बहुत अच्छे तरीके से वो पेश करते थे। सुन्नी दावत इस्लामी पर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। दावत इस्लामी जैसी तारीख है, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक अजीम किरदार उन्होंने यकीनन जो है अदा किया है। हम उनके इसमें जो है गम में बराबर के शरीक रहे हैं और उनके पसमंदगान को भी अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि कई ऐसी शख्सियात जैसे फैज़ुल्लाह बेग जुनैदी साहब हैं, अलहाज नवाब जान कुरैशी साहब हैं, ऐसे फिर वो इस दुनिया में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। आगे बढ़ो भी जरा, जगह रास्ता बनाओ। चलो आगे आगे बढ़ो। अंधेरा कदम चलना